So we'll start with next set of questions. So of course we are studying superposition of waves. लेकिन as you remember कि as far as CET is concerned, थोड़ा 11th का भी पार्ट आता है उसमें से sound because superposition of waves तो sound longitudinal wave and transverse wave दोनों के लिए ही applicable है. So sometimes they may ask you questions related to basics of sound waves. So I have also included such questions in this set. So for me it is not only superposition of waves, it is waves and superposition of waves. So पहला question, the ratio of speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin is. तो आपको पता होना चाहिए what is the speed of sound in a gas, V equal to under root of, what is the formula for this? It is gamma RT by N, where R is universal gas constant, gamma you know it is ratio of specific heat Cp by Cv, T is temperature and M is molecular weight. या तो इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिखते हो. You should remember हमने तो डिराइव किया है ये स्पीड का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था while we were studying kinetic theory of gases, under root of 3RT by M. Okay, so of course now in this case R is constant और आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस ये N2 होता है. N2 मतलब डायटोमिक, हीलियम गैस मोनोएटॉमिक होता है, राइट? तो किस पे डिपेंड करेगा? व्हाट इज कांस्टेंट इज आर, व्हाट इज कांस्टेंट इज टेम्परेचर, क्योंकि दोनों कितना टेम्परेचर है 300. तो सिंस T and R are constant, V is proportional to gamma by M, right? Since T and R both are constants, तो ये पता होना चाहिए आपको, right? So now if you know this much, तो आपको फाइंड क्या करना था? स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम, इसका रेशियो. तो स्पीड इन नाइट्रोजन N2 एंड हीलियम He, ओके, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो गामा नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन मतलब, एंड ये He नीचे है तो मास ऑफ हीलियम अपॉन गामा ऑफ helium. तो as you know N2 डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक का गामा कितना? 7/5. वेरी गुड. तो you need to remember this. मास ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन मतलब 28, क्योंकि N2 मॉलिक्यूलर वेट 14 and 14 28, करेक्ट है ना? 56 तो नहीं है. ओके गुड. व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ He? 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4. व्हाट इज गामा फॉर 5/3? गुड. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. ये 1 था, ये 4 था, ये और ये कैंसिल हो गया, राइट? और 5 कैंसिल नहीं होगा. नो नो नो, इट इज नॉट गोइंग टू गेट कैंसिल्ड. ये ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो 3/25 का रूट मतलब रूट 3/5. तो रूट 3/5 ऑप्शन नंबर सी, दिस इज व्हाट यू विल गेट. Next question. A stone is dropped into a lake from a tower 5 meters high. The sound of the splash will be heard by the man approximately after how many seconds? So, good question. What they are telling you is there's a lake and just besides lake, next to the lake is a tower. तो यहाँ पे एक tower है which is 500 meters high. Is 500 meter high tower से a stone is dropped. So a stone is dropped from this 500 meter high tower. तो इसका height आपको दे दिया है 500 meter. So H is 500 meter. So this is what you need to know. अब आगे आपको बोला है कि यहाँ से जब stone drop करोगे तो जो sound create होगा, क्योंकि sound produce होगा यहाँ पे, because when you drop a stone in the lake, you must have heard sound generate होता है. तो वो जो sound है वो कितने टाइम के बाद सुनाई देगा?
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. एक तो ऑफ कोर्स लीनियर मोशन, मोशन इन 1D. क्यों? क्योंकि ये स्टोन नीचे जाएगा, so this motion of the stone is governed by gravity, and since it is one dimensional motion, it is a 1D motion. तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम लगा. यहां तक साउंड या वेव्स का कोई कनेक्शन नहीं है. अब कनेक्शन होगा जब स्टोन गिरेगा इस पे, तो इस पे से जो साउंड जनरेट होगा, साउंड विल ट्रैवल अप, और साउंड को ऊपर जाने के लिए, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज T2. तो T1 प्लस T2 विल गिव यू टोटल टाइम फॉर द स्प्लैश टू बी हर्ड. तो सिंपल है. तो दो केसेस है. केस 1, टाइम टेकन by the stone to reach the lake. So how do you find out time taken? V square equal to U square plus twice AS, right? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि U तो पता है, U is 0, but do you know what is V? फाइनल स्पीड नहीं पता, तो क्या करेंगे? S equal to ut plus 1/2 at square. Good, that is what you can use. So if you use S equal to ut plus 1/2 at square, S is h, height of the tower, U is 0 because initial speed was 0, minus now plus q plus, it is going towards gravity. तो plus 1/2 और a की जगह पे gt square. तो t1 लिख देता हूं मैं इसको, बिकॉज हम पहले केस की बात कर रहे हैं. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट t1 square is 2h by g. तो you will get from this one t1 equal to under root of 2h by g. तो under root of 2h, h is 500 by g. अब प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी बोला तो नहीं आपको g के वैल्यू 10 लेना है. तो now you have to decide, you have to take a call कि अगर मैं 9.8 लेता हूं तो कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेट होंगी. अगर 10 लेते हो तो कैंसिल 50 to the 100, 100 का रूट 10. तो t1 इक्वल टू 10 सेकेंड, राइट. तो अब विच मीन्स 10 सेकेंड तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 10 सेकेंड तो स्टोन को ही नीचे आने में लग गए. और अज्यूमिंग कि जैसे ही स्टोन गिरा इमीडिएटली साउंड जनरेट हुआ विदाउट एनी लैग, ऐसा अज्यूम करोगे तो केस 2, टाइम टेकन बाय द स्प्लैश, time taken by the splash to reach the man, और ये भी एक assumption है, बिना बोले assumption है कि जिसने स्टोन को ड्रॉप किया लिसनर भी वही है. दैट इज एन assumption here. नहीं तो बोलोगे लेक के बाजू में कोई खड़ा होगा, हाँ, उसके लिए अलग केस होगा फिर. देन Case 2, time taken. How do you find out time in this case? Velocity is distance upon time. So time t is equal to distance upon speed. So t2 is distance, मतलब distance is h और speed of sound in air. और ये नहीं भी दिया तो पता होना चाहिए 340 मीटर पर सेकेंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस. 0 डिग्री पे होता है 332, 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पे होता है 340. नहीं पता तो एक इक्वेशन बता देता हूँ. स्पीड एट हायर टेम्परेचर T इज स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, V0 कितना 332, 332. अगर मैंने बोला 10 डिग्री पे कितना, तो T की वैल्यू डालोगे 10 into 0.61 is 6.1. 332 प्लस 338.1. तो ऐसा कैलकुलेशन होता है वो. तो यू नीड टू नो दिस. एनीवेज, इतना तो पता होना चाहिए आपको कि दिस इज बेसिकली 340 और हाइट कितना है 500. कैंसिल एंड कैंसिल. तो दिस विल बी 25 by 17. 25 by 17 दिख रहा है आपको 1 point something. 17 1 17. What is 17 2 34. What is 17.5? What is 17 into half? 17 का हाफ कितना?
8.5 8.5 17 में अगर 8.5 ऐड करें तो 25 आता, 25.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 1.5 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली. 25 by 17 is approximately 1.5. Therefore, time for the splash to be heard is total time is t1 plus t2. So 10 plus 1.5, that is approximately 11.5 second. Option number A. Next question. At what temperature velocity of sound is double than that at 0 degrees Celsius? Referring to the first question, आपको याद होगा अभी भी मैंने बताया स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम. तो इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैड टू डिफरेंट गैसेस. इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैड टू डिफरेंट गैसेस, एक था नाइट्रोजन एक था हीलियम. पर थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डबल देन दैट एट 0 डिग्री. मतलब यहाँ पे गैस चेंज नहीं किया, गैस इज द सेम. तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम. तो इसमें गामा कांस्टेंट क्योंकि गैस सेम है, R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है और मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो कांस्टेंट. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T. तो सीधा सीधा है, आपको बोला है कि स्पीड डबल होना चाहिए, तो V2 बाय V1 इज अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1, राइट. और आपको बताया है गिवन इज स्पीड शुड बी डबल, तो V2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1, मतलब V2 बाय V1 शुड बी इक्वल टू 2. तो ये 2 सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1. T1 कितना 0 डिग्री, 0 डिग्री मत डाल देना डायरेक्ट. इफ यू पुट 0 हियर डिनोमिनेटर 0 मतलब नंबर बिकम्स इंफिनिटी, रूट ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी. तो याद रखना यहाँ पे जो T होता है दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो 0 डिग्री इन केल्विन इज 0 प्लस 273. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट 4 इक्वल टू T2 और 273. 273 इंटू 4 कैसे मल्टीप्लाई करते हो? 273 इंटू 4, पहले 250 इंटू 4 करो, 1000 बन गया. ऊपर का 23 इंटू 4 92, 23 इंटू 2 46, 46 इंटू 2 92, तो 1092. तो 1092 ये आना चाहिए आपका केल्विन में. दिस इज इन केल्विन. ऑफ कोर्स रिमेंबर द मोमेंट यू पुट T1 इन केल्विन, T2 बिकम्स इन केल्विन. तो ये केल्विन में आ गया आपके पास. देयरफॉर अगर डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है तो व्हाट डू यू डू इज सब्ट्रैक्ट 273. 1092 में से 273 गए तो कितना? 819 डिग्री सेल्सियस. तो 819 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड विल बिकम डबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Equation of a progressive wave is given by y equal to 0.2 cos of pi into 0.04 t plus 0.2 x minus pi by 6. The distance is expressed in centimeter. मतलब y is in centimeter and amplitude is also in centimeter and time is in second. What will be the minimum distance between two particles having phase difference of pi by 2? तो अगर आपको याद होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपने पहले भी सॉल्व किया है. इफ यू रिमेंबर फेज डिफरेंस दिया है, पाथ डिफरेंस निकालना है, तो यू मस्ट रिमेंबर इक्वेशन. पाथ डिफरेंस डेल्टा इज डू यू रिमेंबर इट वाज लैम्बडा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस. या फिर अगर ये याद नहीं होगा तो मैंने इन टर्म्स ऑफ के बताया था आपको. के व्हाट इज के? 2 पाई बाय लैम्बडा. तो अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर पाथ डिफरेंस इज फेज डिफरेंस अपॉन के, वेयर के इज 2 पाई बाय लैम्बडा. तो ये आ जाएगा के अपॉन 2 पाई बाय लैम्बडा. लैम्बडा विल गो अप. तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, यू शुड जस्ट नो दिस. तो अगर ये याद है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो y इक्वल टू 0.2
cos ऑफ ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.04 पाई टी एंड दिस विल बी 0.02 पाई एक्स माइनस पाई बाय 6, right? If you compare with standard equation of simple harmonic progressive wave, simple harmonic progressive wave में first of all सिंपल हार्मोनिक कॉस भी होता है, हार्मोनिक साइन भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको हमेशा साइन चाहिए। तो इफ यू कंपेयर यू विल गेट y इक्वल टू a cos ऑफ, ये है ओमेगा t और ये होता है इफ यू रिमेम्बर इट इज k, तो प्लस के एक्स माइनस सम फेज एंगल जो हमारे काम का नहीं है फिलहाल। सो इफ यू कंपेयर तो यू गेट k इक्वल टू 0.02 पाई, ये कंपेयर हो गया। अब आपको क्या चाहिए था, यू वांटेड टू फाइंड आउट, आपके पास एक वेव में यू हैव अ वेव जिसपे दो पार्टिकल्स है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ लेता हूँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ लेता हूँ, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, π/2, क्योंकि एक कहाँ पे है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, दूसरा कहाँ पे है मीन। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीस टू पार्टिकल्स, π/2। तो अगर इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2 है तो पाथ डिफरेंस कितना, मतलब डेल्टा कितना, ऐसा आपको पूछा है। तो एज यू नो डेल्टा पाथ डिफरेंस इज फाई अपॉन के, फाई कितना दिया है π/2 और के कितना दिया है आपको 0.02 पाई, पाई और पाई कैंसल, तो 1 अपॉन ये 2 इंटू 10 पावर -2 और ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4, राइट? ये ऊपर जाएगा तो 100 बाय 4 इज 25 सेंटीमीटर, है क्या 25 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर सी। So this is how you are supposed to solve this question. Next question. The equation of a transverse wave is given by y equal to. So equation of a transverse wave is given by y equal to 10 sin of pi. Pi को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 0.01 pi x minus 2 pi t, where x and y are in centimeter. Y is in centimeter, मतलब displacement of the particle of the wave is propagating in y direction na, x direction, right? And particles of the medium are performing simple harmonic motion along y direction. Good. तो x और y दोनों सेंटीमीटर में मेजर किए हैं, t is in second. Frequency of the wave is joke. Okay, let us check if you are right or not. A sin of kx minus omega t. Compare कर लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ओमेगा इज 2 पाई, ओमेगा इज 2 पाई, ओमेगा इज 2 पाई, तो दिस इज 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 2 पाई, कैंसिल एंड कैंसिल, तो n इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी। Next question. Two sound waves expressed in CGS units. CGS unit मतलब basically amplitude or y or x. They will be in centimeter. Time will be in second. Frequency will be 1 upon second. Okay. Given by y1 equal to 0.3 sine of 2 pi by lambda vt minus x, and y2 equal to 0.4 sine of 2 pi by lambda vt minus x plus theta interfere. So these two waves interfere. The resultant amplitude at a place where phase difference is π/2. Again, तो इक्वेशन दे के आपको कंफ्यूज करेंगे। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव, ये है दोनों में फेज डिफरेंस दैट इज पाई। और हमने तो ये 11th में वेक्टर्स में भी सीखा था कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phase difference. What is a1? 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, और cos of π/2 तो वैसे भी 0 होता है, तो ये आखिरी का जो टर्म है दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग,
तो 0.3 और 0.4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर रूट में देखे तो 0.5 ही आने वाला है। तो इसको सॉल्व करना भी चाहो तो इट इज सिंपल, बिकॉज दिस इज 0.3 मतलब 3 into 10 power minus 1, उसका स्क्वायर मतलब 9 into 10 power minus 2 plus 16 into 10 power minus 2. But I have told you this infinite times कि एक स्क्वायर के अंदर 3, दूसरे के अंदर 4 और स्क्वायर रूट, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी 5. तो दिस इज 9 plus 16 25, 25 का रूट 5, 10 power minus 2 का रूट 10 power minus 1, मतलब कितना 0.5 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर सी. Next question. The frequencies of two sound sources are 256 Hz and 260 Hz. याद होगा, अगर दो frequencies बहुत near दिए हैं तो of course question will be about beat formation. When you have two very near frequencies, then the question will be definitely related to beat formation. At t equal to 0, the intensity of sound is maximum, matlab wax. You remember in beat formation you have waxes and vanes. Waxing is when you hear loud sound and vane when you hear no sound. So sound का intensity change होता रहता है, 0 and then slowly increases becomes maximum, and then it decreases becomes 0, then it increases becomes maximum. So alternate waxing and waning of sound is called as beat, right? So at t equal to 0, the intensity is maximum, मतलब t equal to 0 पे you hear wax. Then the phase difference at time t equal to 1 by 16 will be, what will be the phase difference given the frequencies? अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक आपको इक्वेशंस दे रहे थे और आपको पूछ रहे थे कि अगर पार्ट डिफरेंस इतना तो फेज डिफरेंस कितना, अगर फेज डिफरेंस इतना तो पार्ट डिफरेंस कितना सिंगल वेव का. यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, मतलब दो अलग वेव्स है, और दो वेव्स के केस में आपको बताया है what is the time difference at time 1 by 16th of a second. तो how to solve this? सबसे पहला, first thing is that you need to find out what is time period. और आपको पता है बीट के केस में, अगर याद होगा, बीट के केस में टाइम पीरियड इज 1 upon difference in the frequencies. तो 1 upon n2 minus n1. 1 upon n2 minus n1. What is n2? 260. What is n1? 256. That is 1 by 4. तो ये आ गया टाइम पीरियड विच इज 1 by 4. करेक्ट. टाइम पीरियड 1 by 4. What was by definition time period? The time between two axes. पहला वैक्स सुनोगे t equal to 0 पे, फिर 1/4 मतलब 0.25 सेकेंड के बाद दूसरा वैक्स सुनोगे, फिर 0.20 सेकेंड के बाद तीसरा, और उसके बाद वापस से चौथा. तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सेस और वेन्स इज 0.25 मतलब 1/4 ऑफ अ सेकेंड. गुड. हमें जो टाइम दिया है, हमें टाइम डिफरेंस कितना दिया है? मैं टाइम डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्या पूछा है? फेज डिफरेंस. जैसे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, वैसे ही टाइम डिफरेंस पे रिलेट कर सकते हो. सिमिलरली यू कैन से, देखो अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आपको सब पता है. डू यू रिमेंबर? If you remember, of course you must remember, path difference is equal to lambda by 2 pi times of phase difference. मैंने आपको डायमेंशनली भी बताया था. I told you कि देखो अगर पाथ डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे ऊपर वेवलेंथ ही लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एंगल और एंगल कैंसिल होंगे, तो वेवलेंथ इज लेंथ, लेंथ इक्वल टू लेंथ, क्योंकि पाथ इज लेंथ, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेंथ, राइट. अगर ये याद होगा आपको तो डेफिनेटली इट इज सिंपल. पाथ की जगह पे लिखो टाइम डिफरेंस, लैम्बडा की जगह पे लिखो टाइम पीरियड. हो गया. टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम पीरियड अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस. दिस इज हाउ यू मेक फॉर्मूलास. गुड. डू यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड? 1/4. डू यू नो व्हाट इज फेज डिफरेंस? वो तो पूछा है ना, राइट. और टाइम डिफरेंस कितना दिया है आपको? 1 by 16. तो टाइम डिफरेंस, इसको t लिखो या इसको डेल्टा t लिखो, एक ही बात है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज दिस? t2 minus
तो T2 कितना दिया 1/16, T1 तो 0 ही दिया है आपको इनिशियल टाइम, राइट। तो इसको T लिखो या इसको डेल्टा T लिखो या इसको T2 - T1 लिखो या इसको डायरेक्टली 1/16 लिखो, इज द सेम थिंग। तो ये आपको दिया है 1/16, राइट, गुड। तो 1/16 और टाइम पीरियड इज 1/4। सब्स्टिट्यूट, टाइम डिफरेंस इज 1/16, दिस इज 1/4 और 2 पाई, और ये आ गया आपके पास। आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना था, तो फिर यहाँ से फेज डिफरेंस मिल जाएगा, सिंपल। 1 एंड 4 का, 1 एंड 2 का, ये गया ऊपर, तो π/2 इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस यू शुड गेट इक्वल टू π/2, तो ये आपको मिलना चाहिए π/2। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। So I see in this set most of them are C. Do you see there are C's? Next question. A stretched string of 1 meter length and mass 5 into 10 power minus 4. एक तो आपको length of the string दे दिया, and then they have given you total mass, मतलब आपको mass per unit length find करते आएगा। So capital M, total mass of the string is 5 into 10 power minus 4 kg. Length of the string is 1 meter, is having tension of 20 Newton. So string में tension 20 Newton का है। If it is plucked at 25 centimeter from one end, then it will vibrate with what frequency? If you are plucking it at a distance of 25 centimeter, it will vibrate with what frequency? So there are 2 to 3 different methods of solving the same question. तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, एंड एज यू नो कि थोड़ा थोड़ा हम एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा डालते जाते हैं। तो अब तक हमने वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट प्लकिंग डिस्टेंस। प्लकिंग डिस्टेंस मतलब कितने डिस्टेंस में मैं प्लक करूंगा, कौन सा मोड मिलेगा, राइट, कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा। अगर आपको याद होगा, फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, इफ यू रिमेंबर, just to tell you few modes here. पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, हाउ मेनी लूप्स यू हैव? 1, है ना। फंडामेंटल मोड में एक लूप मिलता है। और आपको याद होगा थ्योरी में मैंने आपको बताया था, अगर आपको फर्स्ट मोड में वाइब्रेट करना है तो यू हैव टू प्लक राइट एट द सेंटर, मतलब बीच में उसको खींचो और छोड़ दो, एग्जैक्टली एक लूप बनेगा। तो रिमेंबर दिस, ये टोटल लेंथ कितना? L। आपने प्लग कहां किया? राइट एट द सेंटर, L/2। सेकेंड मोड में आपको 2 लूप मिलते हैं, एंड अगर आपको सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन चाहिए, मतलब सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, तो यू हैव टू प्लग 1/4। वेरी गुड। यू हैव टू प्लग L/4, राइट, गुड। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? L/2 into 2। यस। अगर मुझे तीसरा मोड चाहिए, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, वेयर विल यू हैव टू प्लग? अगर मुझे फोर्थ मोड चाहिए, let us go one step ahead, एक स्टेप और आगे जाते हैं। if I want to have fourth mode, fourth harmonic third overtone, 4 लूप, 1 2 3 and 4, where are you supposed to pluck? हाँ, 2L कैसे आएगा? L/2 L/4, it should be L by something, L/8, not correct। तो एनीवेज, तो पहले मोड में प्लकिंग डिस्टेंस वाज L/2, दूसरे मोड में वाज L/2 into 2, तो लॉजिकली L/2 into 3 विल बी थर्ड केस। फोर्थ मोड में L/2 into 4, राइट, करेक्ट। अगर pth मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा L/2p, right, this is plucking distance and also connect with the number of loops। यहाँ पे आप जब 1 लिखते हो तो ये 1 होता है नंबर ऑफ लूप, ये 2 लिखते हो तो नंबर ऑफ लूप, ये 3 लिखते हो तो नंबर ऑफ लूप,
4 लिखोगे तो नंबर ऑफ लूप, तो p लिखोगे तो p भी नंबर ऑफ लूप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लकिंग डिस्टेंस is equal to L by 2p, total length of the wire by 2 times of p। अब इससे क्या मिलेगा, प्लकिंग डिस्टेंस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर, टोटल लेंथ कितना दिया है 1 मीटर अपॉन 2p, राइट। तो p यहां से फाइंड कर लो, ये 1 जा और ये 4 जा, ये 1 जा और ये 2 जा, तो p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 मतलब कौन सा मोड, सेकेंड मोड, सेकेंड मोड मतलब फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक, वेरी गुड। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। देयरफॉर स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन, स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन सेकेंड मोड, और सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद होगा, सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी वाज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दिस केस 1 upon 2L, 2L root of T by M, where M is mass per unit length, 2 गया, 1 by length is also 1, तो 1 by 1, 1 by 1, तो what is tension given to you 20, what is mass, small m मैं यहीं पे find कर देता हूँ, तो I will just find it out here itself, I will write it down over here। तो स्मॉल m इज मास अपॉन लेंथ, कितना मास है 5 into 10 power minus 4, और लेंथ कितना है 1, तो 5 into 10 power minus 4 किलोग्राम पर मीटर, तो 5 into 10 power minus 4, 1 जा एंड 4 जा, ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 4 into 10 power 4, मतलब ये कितना आ गया 2 into 100, मतलब 200 hertz, option number B। So you see it's not C this time। Next question, two similar sonometer wires given fundamental frequencies of 500 hertz, these have same tensions, by what amount the tension be increased in one wire so that the two wires produce 5 beats per second। तो ऑफ कोर्स जब तक दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो बीट्स नहीं होंगे, बिकॉज n1 minus n2 becomes 0, राइट। बट इफ यू इंक्रीज टेंशन इन वन वायर, और आपको पता है अभी अभी आपने देखा फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू टेंशन, इफ यू चेंज द टेंशन फ्रीक्वेंसी विल चेंज, इसका मतलब नाउ बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड बीट्स प्रोड्यूस्ड आर 5 पर सेकेंड, राइट। और 5 बीट्स मतलब क्या होता है, मतलब n1 minus n2 होता है ना, मतलब डेल्टा n होता है। तो अभी इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स, तो सिंपलेस्ट वन इज by using what you have learned in chapter 1 of 11th। Do you remember something called as propagation of errors, combination of errors? उसमें एक आप फॉर्मूला डिराइव करते हो, वो यूज कर सकते हो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know that n, fundamental frequency n, is equal to 1 by 2L root of T by M। Did you change length of the wire? No। So did you change the wire itself? No। So L or M constants, so n is proportional to root of t, very good, root of t, therefore you will have t proportional to n square। अब आपको याद है आप बोलते हो z इक्वल टू a रेज टू n, अगर हमारे पास हो तो डेल्टा z बाय z इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a, याद है 11th का पहला चैप्टर, राइट। अगर इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज और रिलेटिव चेंज, क्योंकि ये फ्रैक्शन आता है। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, और आपको क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंज है दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो दे आर आस्किंग यू बाय व्हाट अमाउंट, मतलब बाय हाउ मच परसेंटेज टेंशन शुड बी चेंज्ड। तो ये वो जो फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ अप्लाई कर दो, so you will write down delta t by t into 100। why into 100? because परसेंटेज में आंसर है, इंडेक्स जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है
2 times of delta n by n into 100. Good. Then ये 5 beats per second. What do you understand by this? 5 beats per second. क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो डेल्टा n by n मिल जाएगा, और डेल्टा n by n मिल गया तो हो गया आपका काम. तो what will you do here? What will be this? What will be delta n by n? So here, of course, you were given the original frequency. So delta n is change difference in the frequency. So 2 into this is delta n is 5 और original frequency 500 दिया है, multiply by 100, cancel and cancel, cancel. ऊपर 500 नीचे 500 cancel. So what is the percentage increase in tension is 2%. A string is producing transverse vibration whose equation is y equal to 0.021 sine of x plus 30t, where x and y are in meter and t is in second. The linear density of the string is, मतलब small n दे दिया आपको. Then the tension in the string in Newton will be. तो बहुत simple question है. First of all, y equal to 0.021 sin of x plus 30t. इसके एग्जैक्ट नीचे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो तो आपको समझेगा कि आपको यहां से क्या मिल सकता है. What you can obtain is, first of all, just look here. दूसरा आपको क्या पूछा है? टेंशन इन न्यूटन, राइट? और क्या दिया है? लीनियर मास डेंसिटी. तो डू यू रिमेंबर, अभी दो तरीके हैं, वापस से दो वेज है सॉल्व करने के, राइट? एक तो यहां से ओमेगा मिलेगा, ओमेगा से एन मिलेगा, एन इज फ्रीक्वेंसी, राइट? करेक्ट. दूसरा n इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ t बाई m लिख सकते हो, लेकिन लेंथ कहाँ दिया है? दिया क्या लेंथ? नहीं. तो what you know is v equal to root of t by m. Do not get confused between this v और जो आज का पहला क्वेश्चन था वो v. ये जो पहला क्वेश्चन था आज का, ये v है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट इज साउंड इन गैस, और यहाँ जो मैंने v लिखा है दैट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. वहां पे t टेंशन है और उसमें t टेम्परेचर था, वहां पे नीचे m मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ पे m मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी है. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. इसको अब m दे दिया आपको, टेंशन पूछा, स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर इज t बाय m, तो t इज v स्क्वायर m, राइट? सो इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट v, व्हाट इज v? n लैम्बडा, राइट? और n लैम्बडा कहां से मिलेगा? ये कंपेयर करोगे तो आपको मिल गया k कितना मिला? 1. लेकिन k क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा. तो यहां से आपको मिल गया लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा मिल गया आपको 30. पर ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n. तो आपको n मिल जाएगा फ्रॉम हियर 15 बाय 5, राइट? तो व्हाट यू हैव लैम्बडा, व्हाट यू हैव n, और हमको चाहिए टेंशन. टेंशन इज v स्क्वायर m, बट v इज n लैम्बडा. तो n लैम्बडा स्क्वायर इनटू m. n कितना दिया है आपको? अभी फाइंड किया है 15 बाय 5, और दिस वाज 2 पाई स्क्वायर, और m कितना दिया है? 1.3 into 10 power minus 4 किलोग्राम पर मीटर है क्या? यस, करेक्ट है. कैंसिल एंड कैंसिल. 30 स्क्वायर इज 900 into 1.3 into 10 power minus 4. ये दो जीरो और ये 10 पावर माइनस 4 का एडजस्टमेंट हो जाएगा 10 पावर माइनस 2. 9 into 1.3 13 point नहीं 1.3 27 27 हाँ पॉइंट यस 11. ओके गुड. तो 9 1 9 और 9.3 जा 2.7. 9 और 2.7 इज 11.7. 11.7 into 10 power minus 2 न्यूटन. ये आना चाहिए, नहीं है तो है 11.7 मतलब 0.117. ऑप्शन नंबर डी. So that's it for today.